Switch over to pronoun. So pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun is a word used instead of noun. Like Ram is going to market. So if we are using he is going to market, that means this is used in place of Ram. So he is pronoun. Okay. Anything like if you are using market. So in place of market you can also use there. Ram is going there. Then there is also a kind of pronoun. Anything which is used in place of noun, that is called pronoun. So there are various kinds of pronouns. So types of pronoun. Types of pronoun is personal pronoun. Personal pronoun, that means it is used for person. Like it is used for person. I, you, we, you, they, he, she, they. So these are personal pronoun which is of three types. Personal pronouns are of three types. One is first person. So first person, second person and third person. So first person is I, we, second person is you, and third person I, you, he, she. समझ में आ गई बात कि नहीं? So second person and third person is he, she, they. Pronouns are those parts of speech which are used in place of noun. और इसका फर्स्ट कौन सा है? That is पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आएंगे जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं? आई, यू, वी पर्सन के लिए तो यूज किए जाते हैं. तो पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So reflexive pronoun, that is in this self is written, it is associated with the subject. Reflective, I washed cloth myself. तो myself हो जाएगा reflexive. मतलब ये उसी से it is associated with the subject. इसका मतलब है वो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे आप अपना ही चेहरा इस कॉन्वेक्स में देखते हो, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ पीछे, तो आई सॉ माई सेल्फ. आई सॉ, तो ये जो माई सेल्फ हो क्योंकि रिफ्लेक्शन है. सर ये जरूरी है सिर्फ हमारे से रिलेटेड? ही सॉ हिमसेल्फ, यू सॉ योरसेल्फ, वी सॉ आवरसेल्व्स. सो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. I washed cloth myself. I, in this self word is used.
is used. So I, जैसे अरुण punished. Now इसको अनुराग पूरा करें. They hit. क्या करना है? इसको कंप्लीट करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से. I don't post punished. इसमें reflexive pronoun आता है. होना तो नहीं चाहिए. एक मिनट रुको. मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ. अभी ठीक हुआ कि नहीं? कि फिर से कनेक्ट करो. ओके. सो he saw, she saw in mirror. और इसी तरीके से we, ठीक है, visited. तो इन सबको कंप्लीट करना है. एकलव्य पहले में बताओ क्या लिखूं. अरुण पनिश्ड himself. ठीक है, himself. ओके. आपकी प्राची, आपकी आवाज और आनंदिता की एक जैसी लगती है, मैं पता नहीं लगा पाता हूँ. आप बोलो अर्पिता. They hit ओके. देखो they hit themselves होगा. ओके. They hit themselves. ओके. सौम्या, I was myself. Now Udayveer. He saw himself. Okay. Himself. And she saw in mirror. Herself. She saw herself in mirror. वो भी हो सकता है. ठीक है. अब अगर मान लो he herself saw in mirror, he herself washed cloth, मैंने खुद अपने कपड़े धोए, तो वो emphatic pronoun हो जाएगा. अगर पहले लगा दो, इसका मतलब है वो उस पर जोर दे रहा है कि कोई कपड़े धोने वाला है, तो मैंने खुद धोए, मैंने अपने कपड़े खुद धोए, तब तो ये हो जाएगा कैसा प्रोनाउन? रिफ्लेक्स. ही हिमसेल्फ है और शी हरसेल्फ है. ठीक है. वी विजिटेड गलत है, ही के साथ हिमसेल्फ ही होगा. अच्छा, वी विजिटेड आवरसेल्व्स. It is ourselves. Yes, ourselves. It is beautiful. It is most beautiful. फिर क्या हो जाएगा? Itself. Okay. Now ये हमारा हो गया reflexive. Then what is emphatic pronoun? जहाँ पर where there is emphasis on the subject. Good evening. आओ बेटा. Emphatic pronoun. So here emphasis is given for subject. So emphasis का मतलब समझते हो? जोर देके कहना. Emphasis is given on subject. जैसे I myself washed cloth. इन दोनों में फर्क है. I washed cloth, my cloth myself. I washed cloth myself. I myself washed cloth. जैसे कोई राजकुमारी बोल रही है, I myself washed cloth. तो मतलब जोर देके कहा जा रहा है कि नहीं, वहाँ कोई अन्य कपड़े धोने वाला नहीं था, मैंने खुद धोए. I emphasis का मतलब क्या होता है? जोर देना. इसी चीज को जोर देकर कहना. तो emphasis हो गया कि नहीं? मैंने myself को वहाँ से स्विच ओवर करके पहले लिख दिया. I myself washed clothes. इसी में ही they themselves hit. ठीक है. with wall ऐसा है. उन्होंने खुद अपना सर फोड़ा. they themselves hit against wall.
अब जरा देखो इस तरीके का होगा. नेक्स्ट इज demonstrative pronoun. So if you are pointing out something, this is a pen, that is a ball, those are boys, these are girls. So it is used for demonstrate anything. Okay. So these are indicating, these pronouns are indicating something or some person. Like this is my book. So that ball is yours. Those are culprits. Culprits का मतलब अपराधी हैं, शातिर हैं. These dresses are dirty. So यहाँ पर these, इसके अलावा it is an insect. जैसे कीड़े हैं तो it लगाना होता है, जो छोटी चीजें हैं. It is an insect. So यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी न किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं. Hence these are demonstrative pronoun. क्या आप मुझे बताएंगे अभी तक कितने प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं? अभी तक demonstrative pronouns, reflexive pronoun, emphasize, Emphatic और एक और personal. So okay, next is indefinite pronoun. ये फिफ्थ टाइप है. So this is third, this is fourth, and this is fifth. So these are indicating, these towards uncertain objects, यानी वहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं होती है. Like some are born great, some boys are born great. इसका मतलब क्या है? फिर कुछ जन्मजात उच्च कोटि के होते हैं. जैसे तो इसमें अब जैसे ये चीज हो गई, तो उदयवीर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या समझ गए? अभी बताने सर इसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं डोनेट भाई आप मुझे ये बताइए उदयवीर, ये जो सम है ये क्या है? ये कौन सा प्रोनाउन है? इन्होंने क्यों कहा कि ये एडजेक्टिव है? ये भी बोल सकते थे इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इन्होंने कहा कि अगर ये नाउन के पहले लगा है तो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उसे क्वालिफाई कर रहा है. और अगर नाउन को रिप्लेस कर रहा है Pronoun. तब प्रोनाउन है. अगर सम के आगे बॉयज लगा दोगे तो बात बिगड़ जाएगी. तब वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. Some के आगे बोलो. देखो सम बॉयज है प्रीसीडिंग, और सर सम है तब ये एडजेक्टिव हो गया. अब अभी क्या है, बॉयज अमिट कर दो तो सम उसकी जगह आ गया कि नहीं? तो ये कौन सा हो गया? जय इनडेफिनिट प्रोनाउन. अच्छा ये बताइए प्रोनाउन ही हमें समझना चाहिए कि ज्यादा नहीं समझना चाहिए
इंडेफिनिट तो बात की बात है, प्रोनाउन पता होना चाहिए। ये क्या है जय? एडजेक्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ओके, नाउ सर इसमें होता क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन? मैनी, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर। ना हम कार्डिनल नंबर के बारे में जानते हैं ना ऑर्डिनल नंबर। जैसे 3 बॉयज आर गोइंग, सो 3 बॉयज आर गोइंग ये कार्डिनल नंबर है। आई स्टूड सेकंड इन माय क्लास, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डर में आ रहा है। और कार्डिनल नंबर 1 2 3, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये दोनों चीजें हमें समझनी चाहिए, आगे आने वाला है। मैनी आर मैड अबाउट मटेरियल थिंग्स। अच्छा, इसमें सौम्या ये मुझे बताइए कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है? मैनी, बिकॉज देयर इज नो डेफिनिट नंबर। लेकिन बहुत सारे लोग भौतिक जगत के पीछे पागल हुए करते हैं, है कि नहीं? दे आर मैड अबाउट मटेरियल थिंग्स, मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, ये चाहिए। दे आर नॉट गोइंग स्पिरिचुअली, दे आर ओनली परसुइंग द मटेरियल थिंग्स। None but the brave deserves braves none but the brave deserves the amenity of earth। यानी हाँ, सर वहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, some boys were born। some boys, सेकंड है ये ना, ये नहीं अभी भी पैदा हो रहे हैं। some boys are born great, कुछ जन्मजात होते थे नहीं, कुछ जन्मजात वीर होते हैं। समझ आए कि नहीं? जैसे हम किसी को बोलना चाहें तो ये थोड़ी कि वो मर गए हैं सब जो होते थे, अभी भी हैं। अच्छा, ये क्या है? वीर भोग्या वसुंधरा। ये जो वसुंधरा है, ये धरती है, ये वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य है। सो नन बट द ब्रेव, कोई अब कायर नहीं, सिर्फ बहादुर। दे एंजॉय, दे डिजर्व, सिर्फ वही काबिल है कि जो धरती की एम्यूनिटी, सुख सुविधाओं का लाभ उठाए। कौन इस धरती को भोगता है? जो वीर है। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द एम्यूनिटीज ऑफ अर्थ। समझ में आई? तो इसमें ये मुझे बताइए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? नन नन। ओके, प्राची आपने ठीक बताया। अच्छा, ऑल आर मोर्टल, प्राची इसका मतलब क्या है? बोलो। मतलब सब मरेंगे। हाँ, सभी नश्वर हैं। दैट इज द थिंग्स आर एफिमरल इन वर्ल्ड। ये जितनी भी चीजें हैं ये क्षण भंगुर हैं, एफिमरल। दैट मीन्स अभी नष्ट होने वाली, इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। जैसे गॉड इज इटर्नल, वी आर एफिमरल। समझ की बात की नहीं? सो मैन आर मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, जो नष्ट हो जाए वो नश्वर है। तो यहाँ ऑल, लेकिन फिर भी डेफिनिट नंबर तो नहीं है ना। सो ऑल आर, बोलो। मोर्टल का मतलब नश्वर हुआ, एफिमरल का मतलब भी ये क्षण भंगुर, जो क्षण में नष्ट हो जाए। और इटर्नल, इटर्नल मीन्स विच इज फॉर एवर, जो शुरू से ही कभी, मतलब कभी जिसका शुरुआत नहीं और ना कभी अंत होगा। समझ में आ गई बात? सो मोर्टल का मतलब क्या बताया? नश्वर का मतलब, ये जो भी अर्थ है ये मोर्टल वर्ड है ना, यहाँ लोग मरते हैं। सो ये क्या आप इस धरती को किस, कोई लोग मृत्यु लोक भी कहते हैं क्या? जो धरती पे आया वो मरेगा ही क्या? कहते हैं ये मृत्यु लोक, यहाँ तो मृत्यु होती ही है। अब जरा देखें, डिड एनी वन ऑफ देम अटेंड द पार्टी? तो इसमें अमितेश मुझे आप बताइए कि क्या चीज इनडेफिनिट प्रोनाउन है? एनी वन ऑफ देम अटेंड द पार्टी। ठीक कहती हो।
तो मैं Party. बोलूँ क्या? बोलो anyone is correct. ध्रुव आप भी आंसर दीजिए. Now, okay. So somebody knocked at the door. Somebody. हाँ. तो ये कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो अवसर है एक बार दरवाजा खटखटाता है. वैसे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया. सो समबडी, पता नहीं किसने खटखटाया, लेकिन ये कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच वन ऑफ यू विल गेट स्वीट. तुम में से प्रत्येक मिठाई पाएगा. सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया कि नहीं? एवरी पर्सन ऑफ, okay, every person of country should respect their nation. Distributive pronoun क्या है? सर पर ये indefinite भी हो सकता है. यानी अगर जो एक ग्रुप है उसमें प्रत्येक की ओर संकेत किया गया हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं. सर यहाँ पे भी तो all are immortal है, यहाँ पे भी तो प्रत्येक की ओर संकेत. ऑल आर मोर्टल. यहाँ पर ऑल का मतलब कोई ये नहीं है एक ग्रुप है और उसके बारे में कहा गया है. जैसे मैं उसमें वो ग्रुप भी बता रहा हूँ और फिर उसके बारे में बता रहा हूँ. एवरीवन नहीं बोला गया है, एवरीवन ऑफ दिस क्लास. उसके जैसे ऑल हमने कह दिया, ऑल में यहाँ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑल. ठीक है ना? अब उसको एक बार समझ लें फिर आपको दोनों में अंतर बताएं. अभी वो बताया नहीं ना. Somebody knocked at the door. Now, distributive pronoun. So, अब जरा देखें कि these are okay. So these are indicating to, these pronouns are indicating to everybody या each or few of them or few of a group. जैसे यहाँ देखो, each of you will get a prize. यानी यहाँ पर ये बात कही गई है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है आई एम फोकसिंग ऑन ईच. ईच ऑफ यू मतलब तुम में से प्रत्येक को इनाम मिलेगा. ईच ऑफ यू, यू का मतलब सिंगल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, और यू का मतलब है. बोलो क्या बोले? सर आपने एवरीबॉडी ऑब्लिक ईच ऑफ यू ऑफ अ ग्रुप लिखा ना. इसका मतलब है ईच और फ्यू ऑफ ए ग्रुप. यानी ये भी हो सकता है कि सबको एड्रेस किया गया हो, या उनमें से भाई 4 लोग पाएंगे 4 नहीं पाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं हम. तो ईच ऑफ यू विल, नन ऑफ यू इज गिल्टी. तुम में से कोई अपराधी नहीं है. तो हम तो indefinite में भी आता है. नन आता है. जैसे अब हमने क्लास बताई, अब उसमें ये है कि पता नहीं 15-15 मिलियन ऑर्गेनिज्म में कितने, वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट इट. हाउएवर हियर द क्वांटिटी इज फिक्स्ड. वी नो दैट देयर आर 40 persons एंड इन दिस ईच ऑफ यू. वहाँ पे ऑल जब हम कह रहे हैं, कोई हमसे पूछेगा कितने, जस्ट शट अप, amend your question, it is a foolish question. वहाँ ये कह दिया जाएगा. लेकिन यहाँ पूछा जा सकता है how many of persons are there and how many sweets you have bought. Here the noun is definite, the number is definite. That's why I am addressing as this. Judge is addressing none of them is guilty. So this them is very well defined. That is there are 13 persons who have not attacked on parliament. None. Okay. तो यहाँ पर all के लिए कोई पूछ नहीं सकता कितने हैं. ये वास्तव में indefinite होता है, लेकिन जब definite हो
और डेफिनेट में कुछ को या कंप्लीट को एड्रेस किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ नंबर डेफिनेट है, यहाँ नहीं डेफिनेट है, यहाँ ये जनरल है। ये इस तरीके की बात है कि धरती घूम रही है, जैसे कुछ ऐसे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप, मैं नॉट मॉर्टल, ऐसी वैसी बात करें तो उसमें कोई काउंटिंग करके बोलोगे क्या? मनुष्य तो जो है नश्वर है, वहाँ तो कोई काउंटिंग नहीं, जो पैदा होंगे वो भी नश्वर होंगे, बोलो। तो यहाँ पर समझ में आया, ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइज, कभी ना कभी सबको इनाम मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, मिलेगा सभी। There was somebody not back the road to somebody because of the 80. Somebody है, but we are not definite who is there. That's why it is indefinite. But I specify that he Specify हो सकता है कि somebody not at the door, अब एक हो या दो हो, we are not definite about it. मतलब कि वो कौन है, हमारे फिर बच गए, तो हम ये डेफिनेट नहीं है और कितने मेंबर्स आए हैं, मतलब हम नंबर डेफिनेट नहीं है। आप समझ में आ गए कि नहीं? We are not definite. We are not definite about देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेट हूँ, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, each of you that Garima will get a prize, this will get a prize, Anurag will get a prize. I know. आई प्लीज हैं? So demo class. हाँ आई समझ में आई बात कि नहीं? जब मैं ये कह रहा हूँ, उदय भी समझ में आ गई बात, जब मैं कह रहा हूँ each of you, am I aware? Am I aware of that who are those each? मैं जानता हूँ, यहाँ जानते हो या नहीं जानते? हाँ बोलो। नंबर डिफाइन नहीं है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ each of you, that means you to which I am representing is a class, and every member, every 20 member of this class, I know the name of everybody and I will give prize. सर ऐसे तो कुछ बड़े लोगों में भी तो बोला जा सकता है। हो सकता है, आप ये समझिए यहाँ यू है, ये डेफिनेट नंबर है बस। दिस इज ए क्लास हुज नंबर्स आर काउंटेड, तभी यू बोला गया। समझ में आई बात कि नहीं? जब प्राइस की बात दी जा रही है तो ऐसा तो नहीं 10 को दे दो कह दो अब खत्म प्राइस जाओ, लेकिन ऐसे होगा क्या? प्राइस के लिए आपको इतने रखने पड़ेंगे प्राइस। जब आप कुछ करते हो ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइस, तो उतने प्राइस काउंट करो, पैक करो, रखो, नाम लिखो, लेबलिंग करो, तब दोगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि किसी डायस से ऐसे बोल दिया जाए ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइस, हो सकता है क्या? तो ये आप ये समझिए यहाँ जो ग्रुप है वो डेफिनिट है। ओके, अच्छा, नन ऑफ देम इज गिल्टी, इसका क्या मतलब है? इज गिल्टी, उनमें से कोई अपराधी नहीं है। तो दैट मीन्स jury has decided, nobody of them, whether they may be 3, 4, 10, 12, वो नंबर तो पता है ना, तो उन्होंने बताया उनमें से कोई अपराधी नहीं था। बट यहाँ ये डेफिनेट है और नन लगाएगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी सब लोग जा सकते हैं। अब और देखिए, neither of your answers are correct. ठीक है, तो इसका मतलब तो आपने जितने आंसर दिए उनमें से सभी गलत थे, सभी एमसीक्यू गलत थे, कोई भी सही नहीं था। ठीक है, सो ये आइदर ऑफ, सर इसमें नहीं इधर हो जाएगा ना? हाँ, राम और श्याम इज, ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि has misbehaved, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखिए, has misbehaved, उसने शरारत की है। तो अब जरा देखिए कि ये देखिए, ईच पेन इज कॉस्टली। अब उदयवीर ईच क्या है? सर ये तो इंडेफिनिट हो सकता है। देखो ये इन्होंने पकड़ ली बात तुरंत, कैसे इन्होंने बताया एडजेक्टिव है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। भाई भाई पेन को क्वालिफाई कर रहा है, इन्होंने पकड़ लिया, बोला सर आप इसको प्रोनाउन में कहाँ लिख रहे हो? ये तो पेन की
वो कर रहा है, Each of them is costly. है ना? ईच ऑफ द पेन, तब होता तब फिर अलग बात हो जाती। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, हम लोग भी लिखें, दिस इज एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो सेवेंथ इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स द सर प्रोनाउन। इसके 8 पार्ट्स है ना? बोलो। प्रोनाउन के कितने पार्ट्स? प्रोनाउन के 11 पार्ट्स हैं। आप सारे कराओगे? सारे नहीं, जितने भी हो जाएंगे थोड़ी बहुत अब बताएंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस लिए? फॉर आस्किंग। जैसे अगर प्रोनाउन, कभी ये आपने सुना है कि इसको दाऊद इब्राहिम को इंटरोगेशन के लिए ले जाए गए, यानी प्रश्न पूछने के लिए। इंट्रोगेशन रूम है, वहाँ उससे मार यहाँ पे मार के, क्वेश्चन मार्क लगे। हाँ, तो उसका इंटरोगेशन किया गया, नहीं मारा पीटा गया था, क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे अपराधियों से किया जाता है कि नहीं, इंटरोगेट किया गया। तो दिस इज फॉर, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड। गरिमा इज इंटरोगेटेड बाय टीचर। क्यों गई थी, कहाँ गई थी, कैसे गई थी, क्यों नहीं किया? तो अब आप एक कटघरे में खड़े हो गए कि नहीं, तो आपको अगर ऐसे बार बार कोई पूछे, है ना, आपने एक सवाल नहीं होते हैं, अगर आपने नहीं किया अपना होमवर्क तो टीचर 10 क्लास वर्क नहीं किया तो 10 सवाल पूछेगा, तो वो इंटरोगेशन हुआ कि नहीं? ठीक है। सो दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अब इसमें कई चीजें हैं। हु कम्स देयर, सर जिसमें भी क्वेश्चन मार्क होगा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। दैट इज whom did you meet? सर जिसमें WH वाले वर्ड्स हो। हाँ, yesterday। यानी यहाँ मीट क्यों आया है उधर ही, मेट क्यों नहीं आया? सर क्योंकि क्योंकि did ये did past की बात होगी। डिड है, तो डिड आने से मीट हो गया। डिड ना होता, met यू मेट समवन yesterday, whom did you meet yesterday? डिड के आने से क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। Where are those jewels? वो जेवरात कहाँ हैं? और क्वेश्चन मार्क, ये साइन ऑफ इंट्रोगेटिव है। ठीक है। सो साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये भी साथ में आता है। ओके। Whose knowledge is so shallow? इसका मतलब क्या है? तो क्या whose knowledge? Is so shallow। किसका ज्ञान सतही है, यानी सतही का मतलब छिछला है। इट इज नॉट डीपर, ऐसे ही ऊपर ऊपर का जानता है तो बोल रहा है, कुछ जानता नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? whose knowledge is so shallow। अब आप देखिए, तो ये whose हो गया, ये सारी चीज क्या बताती हैं? These are WH words। yes interrogative pronoun। what भी आ सकता है, what is this, how are you। so हाउ फाइन की जगह है, तो अगर हाउ हट जाए तो आई एम फाइन आ जाएगा। तो ये प्लेस कर रहा है कि नहीं? तो एक तरीके से रिप्लेस कर रहा है, देन इट इज दिस। सो सर हम कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला मतलब लिख सकते हैं क्या? कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला लिख सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन मार्क वाले हैं वो सभी क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आप समझ गए, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव प्रोनाउन? सो सर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया लास्ट के दो से। अभी लगा देते हैं। नाउ दिस इज
relative pronoun. So I found book. So ये क्या करता है? It relates pronoun which follows a noun. या ये भी कह सकते हो इट रिलेट्स प्रोनाउन विद द प्रीसीडिंग नाउन, जो उससे पहले आया हुआ नाउन है उससे वो उसको रिलेट करता है. आई फाउंड द बुक विच आई हैव लॉस्ट यस्टरडे. मैंने वो बुक पा ली है जो मैंने गत दिवस खो दी थी. सो आई फाउंड द बुक विच. तो ये विच किससे रिलेट हो रहा है? बोलो. लॉस्ट यस्टरडे. सो विच इज रिलेटिंग टू दिस. सो विच क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन. अब देखिए, वन हु बोरोज गोज टू सॉरोज. एकलव्य इसका मतलब क्या है? वन हु बोरोज सर रिलेटिव प्रोनाउन एक बार बता दो. गोज टू sorrows. So यहाँ पर ठीक है, one who borrows. और इसमें सर एक और बस बता. अभी बताएं तो इसका मतलब बताओ. ये सही बताएं, आप भी बोलो. जो कर्ज लेता है वो भुगतता है. हाँ. बोरोस का मतलब क्या होता है? लेना. कर्ज लेना. सर बोरोस कुछ भी हो सकता है ना. कुछ भी बोरो करो, किसी से भी कुछ उधार लो, उधार लेना. हाँ. बोरो का मतलब उधार लेना. अच्छा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा. सर टू रिलेटिव. बेटा क्या नाम है आपका? हैं? सर बोझ होगा सर. दक्ष. दक्ष. हाँ बोलो प्राची. सर बोझ. सर गोज. सही कह रहे हो, क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है. वन हु अपने पहले वाले नाउन से रिलेट कर रहा है. वन यहाँ नाउन है. वन हु बोरोज गोज टू सॉरोज. तो रिलेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो विच है, क्या विच अपने पहले किसी आए हुए नाउन से रिलेट हो रहा है? यस सर. सो आई फाउंड द बुक, है ना, उससे रिलेट कर दिया कि नहीं उसको? विच आई हैव लॉस्ट. तो ये ठीक है. सो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है वो किसी न किसी के प्लेस पे आया है. आई फाउंड द बुक आई लॉस्ट यस्टरडे. यहाँ पर बुक भी लिख सकते थे मैं, लेकिन बुक की जगह मैंने उसको रिप्लेस किया, इसलिए वो प्रोनाउन हुआ. आई फाउंड द बुक आई हैव लॉस्ट यस्टरडे. ऐसा भी तो कहा जा सकता था, लेकिन मैंने बुक नहीं कहा, उसकी जगह क्या कहा? विच. बोलो, बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप सिर्फ मुझे इतनी चीज बता दो कि 8 प्रोनाउन कौन कौन से अभी तक आ सकते हैं. जो 8 प्रोनाउन पढ़े हैं, हर एक के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं और उनका सेंटेंस बनाना है. 2 सेंटेंस बनाओ और अंडरलाइन कर दो वो 2. देख लो अपने, कुछ नहीं लिखना है, बस सबके 2 सेंटेंस बनाने हैं और उसमें जो अंडरलाइन कर दो. तो राइट, पहली बात है, पहले प्रोनाउन को डिफाइन करो. Write its 8 types and make 2 sentences for it. Okay. Make 2 sentences for each and underline the pronoun. ये क्वेश्चन है. अब जरा देखो कि इसको मैं सेंड कर देता हूँ, आप उसी से देख लें. सर आपने कल के टेस्ट दे दिए. हमने क्वेश्चन लिख दिया है. ओके, तो
क्या अभी और भी हैं, अभी कल हम नेक्स्ट डे में सारे बताएंगे आपको। डीड और डस प्रोनाउन नहीं होते वो हेल्पिंग वर्ब। तो तो हमने भेज दिया है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं, एक बार रेफर कर सकते हैं, 2 मिनट बाद फिर टेस्ट दे दें। बाकी इसके बाद आपको PDF भेज दिया जाएगा, जो आज का टेस्ट पेपर है उसका टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। ये हटा दें अब ऊपर का, नोट कर लिया। रिलेटिव प्रोनाउन का और चाहिए, ठीक है। I dislike man. Who always tells a lie. मैं उस व्यक्ति को नापसंद करता हूँ, यहाँ हु है, ठीक है, जो झूठ बोलता है। तो इसमें आई तो पर्सनल प्रोनाउन है ही है, लेकिन आपको रिलेटिव करना है ना। अब आप यही डेफिनेशन वहाँ भी लिख लो, यही एग्जांपल पर्सनल में भी। सर डेफिनेशन हाँ, बोलिए। बताइए। नहीं, डेफिनेशन नहीं लिखना, 2 सेंटेंस लिखने हैं। Okay. और सेंटेंस में अंडरलाइन करना है कि वो क्या चीज है, जो भी प्रोनाउन है। अभी अब इधर काटा दें, बोलो। ठीक है। ओके, पर्सनल नाउन की 3 फॉर्म है। पर्सनल प्रोनाउन की 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट पर्सन, सही लिखना है। फर्स्ट की भी 2 लिख सकते हैं या फिर थर्ड पर्सन के अलग अलग बैठ जाओ, अलग बैठ जाओ आप लोगों में से कोई। सर इंडेफिनेट में हो सकता है कि समवन इज ऑलवेज ऑन। इंडेफिनेट हाँ, हो सकता है। सर स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करो। सर 2 मिनट। मैं क्विट कर रहा हूँ, आप लोग सबमिट कर दें। फिर मैं आपके ग्रुप में ही पेपर भेज दूंगा, उसी से आप लोग ले लेना, ठीक है।